once again. So how are you all doing? Doing great? Yes. Say yes. Are you all excited for today's class? Okay. Okay, so let's start. It's already 2 o'clock and also 2 minutes. Okay. And then now let's start. So tell me, which is the day today? Which is the day today? It's Monday today. Yes, yes. Okay. Monday. 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 And date? What is the date today? Yes? 8th. Right. 8th of yes. 11th. Which is the 11th month? 11th month कौन सा है? November. Yes. So today is 8th of November and the year is 2021. Right? Okay. And today's thought is, see, can you see the thought? What I have written? Can you read? It's admit your mistakes. Today's thought is admit your mistakes. It means this thought we have already done many times, right? हमने बहुत बार ये thought किया हुआ है. So can anyone explain the thought? आज मैम नहीं बताएंगे, आप बताओ. Yes, Krisha, can you explain the thought? हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए. Okay, क्यों मान लेनी चाहिए गलती? कि हम गलत करते हैं. यस, हम गलत करते तो हमें गलती मान लेनी चाहिए. क्यों मान लेनी चाहिए? सो दैट वो मिस्टेक हमारे से रिपीट ना हो और अगर हम कुछ नया सीख सके. राइट? ठीक है ना. मिस्टेक्स जब हम करते हैं ना, क्योंकि अभी आप छोटे हो, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है हमसे. बड़ों से भी मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी, है ना. कभी कभी मैम भी मिस्टेक कर देते हैं, कोई भी मिस्टेक कर सकता है. तो उस मिस्टेक को मान लेनी चाहिए. ठीक है, मान लेनी चाहिए. सो दैट उससे हम फिर सीख जाएंगे कि हम नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक हम नहीं करेंगे. राइट? ओके, सो नाउ ओपन योर इंग्लिश नोटबुक. सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. सो ओपन योर इंग्लिश नोटबुक नाउ. हरी अप. Write today's day, date. Yes, do it fast. Have you all opened? Show me your thumbs up. Show me your thumbs up. Right, very good. Okay, so all are ready. Alright, so now let's write the heading. So today's heading is the same DICT dictation 7 to 12. Okay, today again we will do the dictation from 7 to 12. Right? Yes. Have you all written the heading? Thumbs up. Show me the thumbs up. अभी नहीं लिखा. Okay, Sanvi has written. Very good. Okay. I have done, ma'am. All right. Okay. Now. So, मैम अब आज हमने कौन से वर्ड्स करने हैं? 7 to 12 में कौन से वर्ड्स करने हैं? Which these words we have already done, right? ये वर्ड्स हमने पहले भी किए हुए हैं ना? So the first word is watch. Write number 7. 7 नंबर लिखना आपने. Okay? Watch. Spelling क्या है watch की? What is the spelling of watch? Yes. WATCH. Very good. WATCH. Watch. First of all, we will write all the words. Then we will draw the pictures. Okay? So first of all, write all the words. Now next is on 8th number. Purse. Yes. P-U-R-S-E. Purse. Yes.
यस, राइट नाइसली, सबने सुंदर सुंदर लिखना है. ओके, PURSE, पर्स. ऑलराइट, एंड नाइन्थ नंबर, ninth is bicycle. Yes, BICYCLE, bicycle. Very good. So you have learned the spellings. Very good. BICYCLE, bicycle. Okay. Now, number 10, write the next word, that is speak. Speak. Speak means बोलना, right? SPEAK. Speak. Okay? जब आप मैम के साथ साथ लिखोगे ना, तो मैम के साथ ही आपका वर्क भी फिनिश हो जाएगा. Okay? Speak. SPEAK, speak. Now the next word is, yes, next word is belong. Do you know the meaning of belong? Yes. Belong. BELONG, belong. What is the meaning of belong? Belong का क्या मीनिंग होता है? Can anyone tell me? Yes. नहीं पता बोलो. Yes. जब किसी की कोई चीज होती है, जैसे अगर ये चौक किसकी है? मैम का है ना. So this chalk belongs to me. ये मेरा है. ओके? अच्छा, अब कोई चीज अगर आपकी होगी तो मैम कैसे बोलेंगे? That pencil belongs to you. वो पेंसिल आपकी है. You are writing with pencil ना? So that pencil belongs to you. वो पेंसिल आपकी है. Right? So belong का मतलब होता है be owned by. Means अगर किसी के पास कोई चीज होती है, जैसे आप कहते हैं ना, दिस इज माई चॉक. माई मीन्स मेरा, तो बिलोंग का मतलब भी यही होता है कि ये मेरी है. दिस इज माई चॉक. दिस चॉक बिलोंग्स टू मी. राइट? ओके. एंड नेक्स्ट वर्ड इज, यस, 12th नंबर पे हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? डू यू रिमेंबर? कैन एनीवन टेल मी? Object. Yes, object. OBJECT, object. Yes, and what is object? Object क्या होता है? What is an object? कौन सी चीज? हाँ, कोई भी चीज होती है. आर्टिकल, एनी आर्टिकल, है ना, जिसका हमें नेम नहीं पता होता है, फिर हम बोलते हैं वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो क्या ऑब्जेक्ट है. राइट? ओके. So we have written all the words. So these are words. Now we will draw the pictures of these words. Right? Watch, horse and bicycle. You all know how to draw the pictures. Okay? Can you draw it yourself? अपने आप draw कर लोगे? जिसको नहीं आती है वो मैम के साथ सारे steps follow करना. Okay? जिसको आती है you can draw it yourself. Okay. Okay. Then draw it yourself. चलो draw करो फिर सभी. और जिसको नहीं आती ना, मैम के स्टेप्स को फॉलो करना. ओके? सो वॉच के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वन सर्कल. ओके? सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन 2 स्लीपिंग लाइंस. ये हम बना रहे हैं उसकी स्ट्रैप. ओके? एंड दिस साइड ऑल्सो 2 स्लीपिंग लाइंस एंड जॉइन विथ स्टैंडिंग लाइन. Okay? Then one more standing line and put some dots, 3-4 dots. Okay? See, this is a watch. ये भी watch है ना, देखो मैम ने डाली हुई है watch.
सो वॉच में वी कैन सी ओनली 4 नंबर्स. मेनली हमें 4 नंबर्स दिखते हैं उसमें क्योंकि इट्स वेरी स्मॉल. वॉच बहुत छोटी सी होती है ना, और क्लॉक बहुत बड़ी होती है जो क्लास में लगी होती है, जो वॉल पे लगी होती है क्लॉक. आई विल शो यू द क्लॉक. सी, वेट, सी, इसको बोलते हैं क्लॉक. व्हाट इज दैट? क्लॉक. दिस इज क्लॉक. इसमें बहुत सारे नंबर्स 1 से लेकर के 12 तक सारे नंबर्स ना बड़े बड़े से लिखे होते हैं. लेकिन जो वॉच होती है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे से नंबर्स लिखे होते हैं. सो इसलिए हमने सिर्फ वी विल राइट ओनली 4 नंबर्स. राइट, हमने सिर्फ 4 नंबर्स लिखने हैं. कौन कौन से लिखेंगे? 12, 3, 6 एंड 9. ओके, सेंटर में डॉट डाल के देन वी विल ड्रॉ 2 हैंड्स. Clock has 2 hands. Alright. Okay. Can anyone tell me the time? What is the time? 3 o'clock. Yes, because we're 3 o'clock हो रहे हैं. अब यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी लाइन्स डाल देनी है इसकी. ठीक है, ये मिनट्स होते हैं. There are 60 minutes. यहाँ पे 60 लाइन्स होती हैं. ओके, ओके, कीप योरसेल्फ म्यूटेड. म्यूट करो बेटा सभी. नाउ नेक्स्ट इज हो गया तो हाँ जी, लेट ज्वाइन किए ना, थोड़ी अटेंडेंस लगा दो इसकी. ओके. क्लास कौन सी बेटा? यूकेजी पिंक. पिंक. नेम क्या है बोलो? नेम क्या है बेटा? रोल नंबर 22. ओके. नाउ डू योर वर्क फास्ट. अब आप लेट आए हो ना, फिर बाकी बच्चे भी आपकी वजह से बैठे रहेंगे, है ना? सो डू इट फास्ट. टेंशन बना दीजिए. नाउ लेट्स ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द पर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वन रेक्टेंगल एंड देन इसका फ्लैप कवर है एंड देन हैंडल ऑफ द पर्स एंड द पर्स इज रेडी. और आप किसी भी शेप का पर्स वैसे बना सकते हो. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट्स ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बाइसाइकिल. For this, draw 2 circles for wheel, right? And then 1 triangle. पहले इसको आपने टच नहीं करना है, ड्रॉ करने के बाद इसको टच करेंगे. ओके, then 1 standing line, फिर एक C बना देंगे and the handle is ready. और इसमें क्या होती है साइकिल में? सीट. सेंटर में यहाँ पे व्हील पे प्लस देन क्रॉस, प्लस देन क्रॉस, और यहाँ पे कैरियर. साइकिल में पीछे कैरियर होता है ना, जहाँ पे सामान रख लेते हैं या कोई बैठ जाता है. एंड देन लास्ट में साइकिल चलती कैसे है? अपने आप चल जाएगी. कैसे चलती है? पैडल से ना, पैडल. Yes, ma'am. ओके, so draw the paddle and the cycle is also ready. Okay, अब आपने इसमें कलर्स कौन से फिल करने हैं? In the watch you will fill yellow color. Okay, you will fill yellow color in the watch, and purse में you can fill any color. Okay, fill the colors nicely. सबने सुंदर सुंदर कलर्स फिल करने हैं. कलरिंग करना अच्छा लगता है ना? कलर करना अच्छा लगता है ना? तो ध्यान से कलर करना है कि बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए. अगर निकल जाता है तो उसको इरेज कर लेना. ओके, मैम का चॉक था इसमें वो इरेज हो गया है, सो आई एम गोइंग टू राइट अगेन.
3, 6, 9 and 2 hands. The clock is, watch is ready. Watch is ready. Now in the purse you can fill any color. Purse में you can fill any color. You can fill any color in the purse. All right. The purse is ready. And in the cycle you have to fill brown color. So आपने इसमें ना कलर पूरा फिल नहीं करना है साइकिल में, जस्ट आउटलाइन करनी है. ओके, जस्ट आउटलाइन, सिर्फ आपने आउटलाइन करनी है लाइक दिस. ओके, only draw the outlines. Don't fill color. आपने इसमें कलर फिल नहीं करना, जस्ट आउटलाइन करनी है. ठीक है, ओके. अगर कलरिंग आपकी रहती है तो कलरिंग आप बाद में कर लेना. ओके, सो नाउ लेट्स डू द सेंटेंसेस. सो फर्स्ट नंबर पे सेंटेंस लिखो बेटा. First sentence, write the first sentence. We should, W-E, we should, S-H-O-U-L-D, we should speak, S-P-E-A-K, speak. हमें बोलना चाहिए. कैसे बोलना चाहिए? वी शुड स्पीक स्लो. S-L-O-W, स्लो. वी शुड स्पीक स्लो. हमें धीरे बोलना चाहिए, बहुत शाउट करके चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए, प्यार से पोलाइटली बोलना चाहिए, है ना. वी शुड स्पीक स्लो. So are you all writing? सभी लिख रहे हैं ना? मैम के साथ साथ लिखना. Yes, very good. सुंदर सुंदर लिखना है सभी ने. ओके, write neatly, nicely. We should speak slow. हमें स्लो बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए. जब हम ज़्यादा चिल्ला के बोलते हैं ना तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हम टायर्ड हो जाते हैं फिर. हाँ, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, देखें मैम, नेक्स्ट सेंटेंस. Yes, ma'am. I have a, I have का मतलब होता है मेरे पास है ना. I have a means one, मेरे पास एक है. क्या है एक? I have a brown, B-R-O-W-N, brown. ब्राउन क्या है? आई हैव अ ब्राउन. ब्राउन क्या है? पर्स. ओके, P-U-R-S-E. सो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हो गया पूरा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? यस, मेरे पास एक ब्राउन पर्स है. वेरी गुड. मेरे पास एक ब्राउन पर्स है. वेरी गुड.
चलो मैम थोड़ी सी लाइन्स और ड्रॉ कर लेते हैं. Now let's write the next sentence. Number 3. That is C. आप C लिखोगे यहाँ पे. मैम प्लीज वेट. Okay. That bicycle. T-H-A-T. That bicycle yes, that bicycle belongs B-E-L-O-N-G-S. क्या बन गया ये? belongs. belongs यहाँ पे मैम ने लिखा था belong, है ना. दिस इज belong. यहाँ पे हम लिख रहे हैं belongs. एस की भी साउंड आ रही है पीछे. That bicycle belongs to me. Yes. Sanvi, can you tell me the meaning of this sentence? Sanvi, can you tell me the meaning of this sentence? My child. हाँ. Bicycle belong to me. हाँ जी, इसका मीनिंग क्या है बेटा? हिंदी में बताओ, क्या मतलब है इसका? आपको बिलोंग्स का मीनिंग भी पता है, दैट का मीनिंग भी पता है, बाइसाइकिल भी पता है आपको क्या होता है. तो क्या मीनिंग हो गया इसका? करणवीर, कैन यू टेल मी? करणवीर, ये बाइसाइकिल मेरी है. ये साइकिल मेरी है. नो, मैम ने दिस तो नहीं लिखा यहाँ पे. दैट लिखा हुआ है. साइकिल मेरी है. वो साइकिल मेरी है. यस, दैट साइकिल बिलोंग्स टू मी. वो साइकिल मेरी है. दैट साइकिल बिलोंग्स टू मी. हाँ, वो साइकिल मेरी है. साइकिल उसकी है. यस, वो साइकिल मेरी है. दैट बाइसाइकिल. सेंटेंस को ना जो भी वर्ड्स मीनिंग बोलते समय ना वर्ड्स को देखा करो. दैट लिखा है कि दिस लिखा है? दैट लिखा था, है ना. नाउ लास्ट सेंटेंस इज, अब मैम थोड़ा सा बैठ के लिखेंगे. लुक, सभी को बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? लुक at that look at that object. object, object, and full stop. Look at that object. Look at that object. बेटा सेम लिंक को आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना. ओके, लुक एट दैट ऑब्जेक्ट.
look at that object. Okay, so what is the meaning of this? Look at that object. देखो उस ऑब्जेक्ट को। उस ऑब्जेक्ट को देखो। लुक मीन्स देखना ना, देखो देखो, लुक एट दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को देखो, राइट? ऑलराइट, सो आई थिंक एवरीबडी हैज डन द वर्क. शो मी अ थम्स अप. ओके, आई हैव डन नहीं बोलना है, जस्ट शो मी अ थम्स अप. थम्स अप दिखाना है आपने. डोंट से आई हैव डन. राइट, सो करणवीर, गुरवीर, दे हैव डन. वेरी गुड. डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. अभी लिंक बंद हो जाएगा तो सेम लिंक पे आपने ज्वाइन करना. ओके, जशनप्रीत, हैव यू डन? ओके, मनकीरत हैज नॉट डन. Done. Very good. What about other students? Write fast. थोड़ा सा ना राइटिंग स्पीड ना अपनी ना इंक्रीज कर लो. ओके, सुंदर भी लिखना है, थोड़ा फास्ट भी लिखना है. ओके, Now who has not done? किसका नहीं हुआ? Who has not done? सभी का हो गया? All have done? Okay, देखो अभी कोई नहीं बोल रहा. It means कि everybody has done, right? है ना? इसका मतलब यही हुआ ना, सबका हो गया, है ना? ओके, वेरी गुड. क्लैप फॉर योरसेल्फ. आपने बहुत फास्ट वर्क कर लिया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो लेट्स रीड ऑल दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. WATCH, वॉच. PURSE, पर्स. BICYCLE, bicycle. SPEAK, speak. BELONG, belong. OBJECT, object. Now sentences. We should speak slow. I have a brown purse. That bicycle belongs to me. Look at that object. Okay, all right, so all have done the work. Now let's move on to the next subject, that is math. So open your math notebook. Open your math. Oh yes, question number 2. Right, thank you so much. Thank you so much. So now write the question number 2. Yes, question number 2. Question number 2 is, what is the ओके, मम्मा को बोल दो, मम्मा जल्दी से क्वेश्चन आपके लिए लिख देंगे. ओके, आपने आंसर लिखना है. ओके, मम्मा को बोल दो, मम्मा क्वेश्चन लिख देंगे जल्दी से, फास्ट फास्ट. व्हाट इज द नेम of your mother? And this is question, so put question mark. Put question mark at the end. What is the name of your mother? Okay, what is the name of your mother? And the answer is
आंसर में हम कैसे लिखेंगे? The name of my mother name is Miss Ilambala. Very good. The name of my mother is Mrs. And then आपने अपने पापा का नेम की स्पेलिंग लिखनी है. ओके, सो बहुत से बच्चों ने लर्न कर ली होगी मदर के नेम की स्पेलिंग. अगर नहीं लर्न हुई है अभी तो यू कैन आस्क योर मम्मा. ओके, आप मम्मा से पूछ लेना. मम्मा विल टेल यू द स्पेलिंग. ओके, मम्मा विल टेल यू द स्पेलिंग. चलो, क्वेश्चन तो मम्मा ने लिख दिया ना आपका, सभी का लिखा ना मम्मा ने. सो राइट द आंसर नीटली, नाइसली. ध्यान से स्पेलिंग आप मम्मा से पूछ लेना. ओके, जैसे बेटा ये लिंक ओवर हो जाएगा ना, एंड हो जाएगा, तो ज्वाइन अगेन विद द सेम लिंक. सेम लिंक से आपने ज्वाइन करना. ओके, मैम, हाँ जी. मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया था. ओके, वेरी गुड, और मैंने भी. वेरी गुड. ओके, सो आई थिंक ऑल हैव डन ना. किसका नहीं हुआ? हु हैज नॉट डन? मैम ओके, राइट फास्ट. अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी फिर. राइट फास्ट, फास्ट 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 फास्ट. मीटिंग. Rasesh, have you done? Okay, now everybody has done. So open your maths notebook now. Open a maths notebook. Write the date on the top. सबसे ऊपर आपने क्या लिखना होता है? Date, day, right? So write the date. Today is 8th of November